Hi, Kashagan. Hi, Monica. Hi. How are you? I'm fine. How are you? Good too. So let's start with the interview. Please give us an introduction about yourself and what have you converted this year? Yeah, sure. I'm from Bhubaneswar, Odisha, and my academic profile is मतलब 10th class में 9.8 था, and 12th class में 96.9%, and I did my UG from Vellore Institute of Technology in electrical and electronics engineering. So I had a CGPA of 8.85. And post that, I worked for a trading firm called Futures First and a fintech company called Pyramid Fintech. And I have a total combined experience of 26 months. And that's my profile. And apart from that, conversions, I did convert. I am Ahmedabad, I am Calcutta, I am Lucknow as well, and XLRI Jamshedpur, the BM program as well, along with SIBM Pune. Okay, great. Yeah. So when did you start preparing for CAT? So I joined Elite Grid last year in उनके batch one में. I had a roommate and a buddy of mine जो काफी positive reviews दिया था Elite Grid के ऊपर, and based on that I mean since I know him for so long, like मेरा roommate भी था UG में, so kind of that trust factor is huge. So I was pretty much sure कि Elite Grid ही join करना है. Yeah, like I said him कि मेरे work commitments के साथ जो balance out होंगे, I probably won't be much more involved in strategizing my whole preparation part, and I would require much more help in that. वो बोला कि Elite Grid best है, and just join it. So I joined in the batch one itself. Okay. So then batch one starts at around Jan and Feb. Yeah. So how did your preparation go? How long did you take to cover up the course and do the basics? Like my preparation phase was entirely dependent upon Elite Grid का plan. Like जो भी faculty बोलते थे, whether it's VRC के faculty जो बोलते थे ये article पढ़ के आना, ये assignment करके आना, I used to do them religiously. Like उनके सारे classes attend करता था, and I didn't touch anything extra apart from Elite Grid. So thing was कि उनके according follow करूँगा, then probably I would be having much more time. कि मतलब at least I would be in pace with them. तो वही था, like I mean I started with them since जैसे ही January start हुआ उनके first classes से I was very religious towards them. So वही था preparation का strategy itself, कि just go with till it's great. ओके एंड आपके मतलब कितना टाइम लगा, मतलब जैसे जैसे कोर्स चल रहा था वैसे वैसे यू आल्सो कवर्ड अप अलोंग विद वर्किंग? Yeah, I mean there were definitely times कि जब काम ज्यादा हो गया तो फिर backlog pile up होने start हुए, but then I mean कुछ days you have to just take a day, like एक weekend आपको थोड़ा ज्यादा time spend करना पड़ेगा just to cover your backlog, क्योंकि अगर target set किया है CAT crack करने का, then you have to be a bit more I mean diligent towards your studies, right? Yeah. So like एक दो weekend you can just take off your मतलब party एक दो दिन कम कर दो and just do your मतलब वो cover कर दो. And that was the plan actually कि just go with मतलब उनके साथ जितना pace पे रहोगे उतना better है. And in fact if you have some time just एक बार पढ़ लो कि कोई एक weak concept हो गया तो एक बार देख लो कि मतलब at least try to cover that weak concept ताकि वो मतलब वो और weak point ना रहे basically. Yeah. तो कोर्स तो आपका साथ साथ में चल रहा था, उसके बाद जैसे मॉक्स स्टार्ट हो गए तो आपने मॉक्स को कैसे स्ट्रेटेजाइज किया और मतलब कितने मॉक्स दिए होंगे इन ऑल अलोंग विद सेक्शनल्स? Yeah, so mock test के time, I mean again वो पूरा Elite Grid ही plan out करता है कि कौन से mocks कब लिखने हैं and कितने mocks लिखने हैं. So around I think मैंने 30 to 40 mocks लिखे थे Elite Grid के career launcher and IMS के मिला के. एंड स्ट्रेटेजी मतलब वही था, वो बता देते थे कि ये वाला मॉक लिखना है एंड हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 मॉक ऐसे होते थे फ्रॉम अगस्त इटसेल्फ कि ये सब लिख के आना. एंड सेक्शनल टेस्ट इसकी मैंने अपने से करियर लॉन्चर का एक्स्ट्रा ले लिया था क्योंकि मुझे वीआरसी में थोड़ा टफ लगता था. एंड वीआरसी इज अ बिट मोर ऑन प्रैक्टिस साइड कि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतने तुम एक्वेंटेड होगे वो सेक्शन के साथ. तो इसीलिए मैंने वीआरसी एंड सेम विद एलआरटीआई का भी ले. आई थिंक आई टुक द एंटायर पैकेज ऑफ करियर लॉन्चर एट दैट टाइम. तो वही था. मॉक्स का स्ट्रेटेजी वाज दिस कि यू I mean, I spend most of my time to analyze my mocks. I used to analyze my mocks pretty well.
like I used to maintain an Excel sheet and a separate notebook and अपनी गलतियां लिखता था and I used to revisit them after a couple of weeks कि यार वो same mistakes repeat now. So strategy was to कि analyze pretty well and when you have some time just do a bit more sectional मतलब if you feel that कि 40 minutes एक VRC में दे सकते हो तो दे दो definitely जब भी time मिले. Even sir हनी sir used to recommend that कि जब भी तुम्हें time मिले तो एक बार लिख दो एंड देख लो कि उसको भी एनालाइज करो डेफिनेटली जस्ट डोंट लीव एनीथिंग हैंगिंग. हम्म. तो सिंस आपने मेंशन किया कि बीएआरसी और एलआरडीआई में आपको थोड़ी ज्यादा हेल्प की नीड थी, तो वो आपने कैसे काउंटर किया? लाइक वीआरसी का प्रिपरेशन फेज आई मीन सिंस ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था एंड फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट ईयर था जब थोड़ा बिना प्रेप के गया था सो आई वाज अ बिट मोर मतलब मुझे पता था कि वीआरसी कैसा आता है लाइक उसके पैसेजेस समझ नहीं किया कभी तो हैंडल ऐसा किया कि लाइक आई थिंक फर्स्ट थिंग वुड बस कि मतलब टॉपिक्स जो होते हैं फिलोसॉफी साइकोलॉजी वो सब थोड़े मतलब आप डेली नहीं पढ़ते हो तो फिर लगते हैं कि मतलब कुछ एक नया सा आता है सो यू मतलब थोड़ा टाइम लगता है कि समझने में. तो शाहजा सर यूज टू गिव अस आर्टिकल्स ऑन वेरियस मतलब टॉपिक्स की साइकोलॉजी है आर्ट है ये म्यूजिक है तो उनको एक बार मैंने मतलब पढ़ना स्टार्ट किया एंड वो हर हफ्ते देते थे तो वो उनको मैंने पढ़ना मतलब वैसे ही पढ़ते पढ़ते यू स्टार्ट टू गेट अ बिट मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ यार आर्टिकल है तो पढ़ लूंगा मैं. सेम वो पैसेज वाली फीलिंग भी आ जाती है कि लाइक हाँ तो पैसेज आ गया साइकोलॉजी का इसको पढ़ा हुआ है तो पढ़ लोगे. एंड वीआरसी का यही था कि लाइक अगेन आप वो असाइनमेंट करो एंड देन अगेन यू नोट डाउन योर मिस्टेक अपनी रीजनिंग चेक करो लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीआरसी में कि कभी कभी आंसर सही आ जाता है बट रीजनिंग सही नहीं होती है. लाइक वो वाला फैक्टर आई ट्राई टू मिनिमाइज इट एज मच एज आई कैन कि मैंने देखा कि ऑथर ने ये क्यों किया लाइक व्हाई वुड एंड फिर मैं सर के साथ चेक कराता था तो वो वाले पार्ट को मैंने बेटर किया अपनी रीजनिंग को सही किया. And I think most of the time we spent much more time was spent on RC correction क्योंकि RC में RC usually की ज्यादा मार्क्स वहीं पे स्कोर हो जाते हैं. तो I spent a lot of time analyzing and doing my assignments again and again मतलब जब भी अगर टाइम मिला तो कभी एक और बार कर लिया असाइनमेंट. सो आई यूज्ड टू नोट आउट इन अ नोटपैड एज वेल कि ये असाइनमेंट का ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है आई हैव सम डाउट ऑन इट एंड अगर डाउट फिर से एग्जिस्ट कर रहा है देन अगेन आई यूज्ड टू आस्क शाजा सर. ओके So that ओके. was BRC. And LRTI का I think ये है कि you have to be kind of calm in that section itself. Like uh, I mean I think I wasn't good in LRTI till my last point as well. कि उसके ना problem sets ऐसे अतरंगी से आते हैं कि आपको मतलब थोड़े वहां पे भी आप फिसल सकते हो. So even in my cat I used to fumble a lot. बट वही था स्ट्रैटेजी कि ट्राई टू मतलब 100% एक्यूरेसी लेके यू ट्राई टू solve a good healthy amount of attempts. So like you can actually achieve 100% accuracy in LRDI. Although मेरी नहीं आई कभी, but definitely that is achievable. तो वही था ट्राई. ओके. एंड आपके मेन कैट की बात करें तो कैसा था आपका एग्जाम एंड हाउ मच डिड यू स्कोर? So my cat मतलब I think मेरा slot one था and I did score a percentile of 99.72. So I think scale score में 99.73 था like there was a 0.01 दोनों में आसपास. I might be confused with those numbers but वही था कि they were interchangeable and same ही था. And sectional wise I scored the most in quants क्योंकि I think वो इंजीनियर होने का फायदा होता है या फिर लाइक इट्स मतलब थोड़ा फेवरेट सेक्शन होता है हनी सर कुछ ऐसा करा देते हैं जो मतलब नींद से उठ के कर लोगे आप ऐसा लगता है. एंड सेकंड बेस्ट वाज का बीआरसी जो 98.9 आ गया था उसमें सेक्शनल में एंड आई थिंक आई डिड फेयरली वेल इन एलआरडीआई एज वेल जहाँ पे 96.7 था आई गेस सेक्शनल वाइज. सो जी. आई थिंक अटेम्प्ट वाइज कैट में आफ्टर बीआरसी व्हेन आई स्विच टू एलआरडीआई तो वहां पे लाइक पहले 12 मिनट मतलब थोड़ा खून सूख गया था क्योंकि आई वाजंट एबल टू डू एनी प्रॉब्लम लाइक एक सॉल्व नहीं हो रहा था. माउस पॉइंटर भी हिला नहीं था 3-4 मिनट से एंड मैंने वो मतलब जो पानी बॉटल लेके गया था वो भी खत्म हो गया था इतना मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था बहुत टफ सा लग रहा था. तो आई जस्ट टुक ए लुक एट माय सेंटर एंड देखा था किसी के पेन भी नहीं चल रहे हैं तो आई जस्ट वेंट विद कि 2 सेट तो सॉल्व नहीं होंगे बट आई मीन स्ट्रैटेजीज ऐसे बन गए थे कि वाइल प्रिपेयरिंग क्योंकि इलिट्स ग्रिड में 2-3 और स्ट्रैटेजी वो करा देते हैं कि ऑप्शन के थ्रू आप ट्राई करते हो 3-4 क्वेश्चन निकालने का.
तो एक्चुअली दैट स्टार्टेड वर्किंग आउट वेरी वेल, क्योंकि मैंने 3-4 सेट के ना मतलब वैसे ही ट्राई करके 2-2 क्वेश्चन वैसे किए एंड 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन सही हो गए एंड जो 2 गलत हुए वो टीटा थे, तो दैट वर्कड आउट प्रीटी वेल. ओके ओके, सो देन यू चोज अ डिफरेंट राउट कि ऑप्शन से भी सॉल्व कर लेते हैं. Yeah, I mean the conventional approach wasn't working very well. So like after 12 minutes जब कुछ होना नहीं हो पा रहा है, so you start frantically कि एक और approach try करते हैं, कुछ नया try करते हैं. Like I think वो probably worked out pretty well, क्योंकि I mean I think that उसके वजह से ना मतलब like LRDI was a bit very, I mean I think was tough this year, तो इसीलिए. Yeah, I totally agree with that. And if you talk about the score, आपका percentile तो आपने share कर दिया. What did you score? I think my raw score was around 90, and scale score was again 99.73, if I'm not wrong. Because I think percentile and scale score were pretty much the same thing, like 0.01 ka difference tha, so it is bit interchangeable. And sectional wise raw score tha probably, I don't remember that, but LRDI में 18 था, I think quants में 42 था, and 42 था या 40 था, and rest was VRC, मतलब I think around 30s. Okay, okay. So since आपने CAT दिया, उसके बाद did you also think कि मुझे बैकअप के लिए OMETs भी देने हैं, you know, all that theory? Yeah, yeah, I think वो प्लान में हमेशा था, like when I started preparing itself, मेरा प्लान था कि डाइवर्सिफाई करके रिस्क कम करना है. तो आई थिंक कैट इज अ बिट अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम एज वेल, कि यू कैन बी वेरी कंसिस्टेंट इन योर मॉक्स बट डी डे के दिन कुछ भी हो जाता है. सो लाइक वन सेक्शन कैन एक्चुअली रूइन योर एंटायर ईयर. सो आई मीन आई जस्ट वांटेड टू डाइवर्सिफाई इट एंड मतलब देख वो रिस्क कम करना था मुझे. So I wrote NMAT, SNAP, IFT, and ZAT as well, and I think I was decent in all those exams. Even my mock scores in those exams were pretty consistent at that time. And so yeah, I actually I mean I definitely wrote all those exams. So मतलब backup तो हमेशा था मेरे mind में. So अगर ओमेट्स की बात करें, उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है अप्रोच. सबका पैटर्न भी बहुत डिफरेंट होता है. तो उसकी प्रिपरेशन क्या कैट के साथ हो गई थी या कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट की अलग से भी तैयारी की? लाइक हम सिंस मैं ईजी के साथ ऑलरेडी एनरोल था, तो आई वाज मतलब उस समय कॉन्फिडेंस काफी बिल्डअप हो गया था कि प्रिपरेशन अगर इतनी अच्छी हो रही है कैट की, देन डेफिनेटली चांस शुड बी एक्सटेंडेड टू अदर ओमेट्स एज वेल. सो मैंने वही किया था जो मतलब सर ने रिकमेंड किया था. लाइक पहला आई थिंक आई रोट एनमैट, एंड वो उसके अराउंड 10-15 दिन पहले सर सेट की अब कैट कैट की प्रैक्टिस करना छोड़ दो. अब you start reading a bit more about NMAT's pattern. तो NMAT के pattern is usually कि fill in the blanks ज्यादा आएंगे and it's more on a मतलब आपको time base होगा and negative marking नहीं है. So you can actually you can actually do some educated guesses as well. So I think mocks भी मैंने वैसे ही EG के enroll किए थे. I didn't do anything extra. EG के NMAT mocks से मैंने थोड़ा consistency मतलब लाया, and I wrote my first exam of the last year NMAT around October के end में लिखा था, and I got a score of 262, so that worked out pretty well. And I think उसके बाद just after NMAT I wrote CAT. तो CAT का I think at that point of time जब मैं exit कर रहा था सेंटर से, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो गया. बट आई वॉज प्रीटी हैप्पी कि NMAT का तो चलो कम से कम बैकअप है, कुछ नहीं हुआ तो NMIMSC जाते जाके फिर कन्वर्ट हुआ. तो नेक्स्ट आई थिंक आई रोट स्नैप, एंड स्नैप का भी आई थिंक मतलब ठीक ठाक था अटेम्प्ट, एंड फाइनली रिजल्ट वाज आल्सो नाइस. आई गॉट अ परसेंटाइल ऑफ 99.77, एंड आई थिंक माय बेस्ट एग्जाम वाज IIFT, क्योंकि वो सेंटर से एग्जिट होते ही मुझे समझ में आ गया था ये तो बहुत अच्छा चला गया. क्योंकि IIFT का भी आई मीन ऑल दोस ओमेट एग्जाम का स्ट्रेटेजी वाज एंटायरली ऑन EG. उन्होंने ही मुझे स्ट्रेटेजी मतलब बताया कि अभी स्नैप का एक टेस्ट लिख दो आज रात को, एंड कल सुबह इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 1 घंटे का टेस्ट है. यू वोंट हैव टू स्पेंड मच मोर टाइम एनालाइजिंग इट. उसका पैटर्न भी थोड़ा इजी सा है, यू कैन एक्चुअली कोप अप विद इट. एंड IIFT का भी डेफिनेटली देयर वर सम क्वेश्चंस जहाँ प्रैक्टिसिंग की नीड होती है या फिर कहीं पे वो अनक्लियर होता है, लाइक द जीके पार्ट. तो वो भी हनी सर ने कराया था कि देयर वाज अ सेपरेट जीके क्लास, जहाँ पे सर मतलब मजाक के मूड में बता देते थे, तो जैसे याद हो जाता था कि मतलब चलो श्रीलंका का ऐसा हुआ है या वैसा हुआ है. तो आई थिंक IIFT का आई गॉट अ परसेंटाइल ऑफ 99.919 ऐसा कुछ. सो बहुत सारे डिजिट्स थे, आई डोंट रिमेम्बर दैट. एंड लास्ट वाज ज़ैट. ज़ैट के पहले आई थिंक वी गॉट द फर्स्ट
वी गॉट द रिजल्ट ऑफ कैट, तो उस समय मेरा परसेंटाइल निकल गया था. एंड ऑल्सो वी गॉट स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम IIM लखनऊ कि IIM लखनऊ का कॉल आ गया. एंड प्रॉब्लम वाज कि IIM लखनऊ का हमें SOP एंड वो सब प्रिपेयर करके सबमिट भी करना होता है. एंड दैट वाज जस्ट आफ्टर आई थिंक कैट मतलब जैट के एग्जाम के बाद वो लास्ट डेट था. तो प्रिपरेशन थोड़ा हेक्टिक मतलब हेक्टिक हुआ, उतना टाइम नहीं दे पाया. बट आई थिंक आई still it was a decent percentile of 98.4 in that. Preparation wise, again entirely on UG. Decision making is a I mean a whole new thing कि जैसे लगता है ना कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, एथिक्स है आती है. बट दैट वाज अ टोटली डिफरेंट थिंग. इनफैक्ट मेरे कभी कभी डिसीजन मेकिंग में 2 मार्क ही आते थे. तो मतलब उस समय लाइक मजाक मजाक में तो सोच लेता था कि अब क्या मैनेजमेंट होगा, डिसीजन ही एक दो सही नहीं हो पा रहे. But yeah, overall, I think omits and the entire preparation, I mean, I was fully with EG. जो भी आएगा EG के साथ करूंगा वैसा. तो जैसे आपने अपनी स्ट्रैटेजी बताई, आपने एनमैट पहले दे दिया और कैट जब दिया तो एकदम से तो पता नहीं चलता है कि अब कैसा स्कोर आएगा. बट एट द बैक ऑफ योर माइंड एक थॉट हो जाता है कि एक एग्जाम सिक्योर हो गया, सो यू नीड नॉट वरी एज मच. अगर कैट ऊपर नीचे भी हो गया एंड यू हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्स लाइंड अप लाइक IIFT स्नैप, तो उसके लिए आगे बढ़ के यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर. Yes, exactly. कि मतलब एक वो हो जाएगा कि सिंस मतलब बहुत सारे अच्छे बी स्कूल्स हैं इंडिया में. एंड कैट मतलब कैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. एंड इनफैक्ट अभी भी नहीं है कि इफ यू हैव कन्वर्टेड अ वेरी गुड कॉलेज, कि ऐसा नहीं है कि लाइक उससे लाइफ सिक्योर हो गया. यू कैन डेफिनेटली हसल योर वे थ्रू विद एनी बी स्कूल. तो मतलब वही था कि आइडिया था कि लाइक एटलीस्ट बी स्कूल तो एक प्लेटफॉर्म मिले वेर यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट, वेर यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट मैनेजमेंट एंड देन यू कैन बिल्ड योर वे थ्रू दैट. तो वही था लाइक दैट्स द पॉइंट ऑफ राइटिंग दोस मैनेजमेंट एग्जाम्स कि मतलब यू हैव अ बैकअप आइडिया एंड मतलब you have a platform or you have a chance, or exactly all you need is a chance. तो आपने जैसे बहुत सारे एग्जाम्स दिए एंड हर एक एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आया है, तो आपके कॉल्स भी बहुत आए होंगे. हाँ या सो थोड़ा हेक्टिक तो हुआ था लाइक शेड्यूलिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच. सो आई हैड कॉल्स फ्रॉम all the IIMs except Indore and Shillong. So and calls from XLRI as well, and definitely matlab IFT and all. So I had all the good B school calls, and just Indore and Shillong missing there, but it's okay, chalega. Yeah. And snap calls and mat calls, ये सब कुछ Yeah, नहीं so हो yes, जाता. तो इनके interviews ना NMAT का usually like NMAT का I think it was colliding with my IIM Bangalore का call. So I had to miss it for some reason क्योंकि मेरे लाइन से इंटरव्यूज हो गए थे. एंड आई थिंक दिस ईयर बैंगलोर का थोड़ा जल्दी जल्दी होने लग गया था. सो माय फर्स्ट इंटरव्यू वाज IIM लखनऊ जनवरी के एंड में 29 जनवरी आई थिंक. तो एंड थर्ड को मेरा SIBM था. फिफ्थ को मेरा MDI नॉट MDI आई थिंक IIM बैंगलोर का वैट था. एंड देन 8 को इंटरव्यू था. एंड उसके बाद 16-17 IIM-K एंड IIM-A. एंड वैसे ही मतलब लाइन से लग गया था कि जनवरी फरवरी काफी बिजी होने वाला है. सो मतलब एट दैट पॉइंट कि मैंने सोचा कि कुछ डिसीजंस होंगे जहाँ पे मुझे कुछ मतलब लीव करने पड़ेंगे कोई इंटरव्यूज. बट वो है कि यू हैव टू बी वेरी मतलब वहां पे जा ट्राई करो कि जहाँ पे मतलब तुम बेस्ट दे सको. या फिर अपने आप को ओवरवेलम करोगे तो पता चला ना यहाँ हुआ ना वहाँ हुआ, दोनों जगह आप अपने बेस्ट नहीं दे पाओगे. सो आई वाज प्रीटी मच मतलब कन्विंस कि चलो अगर NMIMS नहीं हुआ तो SIBM कर लूंगा जैसे तैसे. ओके. तो जैसे आपने बोला कि बहुत जल्दी लखनऊ का भी इंटरव्यू हो गया एंड कैट के लिए तो पूरे साल ही प्रिपरेशन होती है, बट Yeah. इंटरव्यूज के लिए इतना टाइम नहीं होता है. इंटरव्यूज आर ऑल्सो वेरी मेजर पार्ट ऑफ योर सिलेक्शन प्रोसेस. तो उसके लिए आपने टाइम कैसे निकाला एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज? सो इंटरव्यू के लिए दैट्स वेयर आई थिंक मतलब मैंने 2 जगह लिए थे. आई टुक EG एज वेल एज आई मीन बी ट्राइब का प्रिपरेशन. सो बी ट्राइब का प्रिपरेशन इसलिए क्योंकि आई नीडेड मतलब थोड़े ज्यादा स्लॉट्स चाहिए थे, थोड़ा ज्यादा 1:1 मतलब अटेंशन चाहिए था मुझे. क्योंकि लाइक मतलब सिंस जेम कैंडिडेट हूँ मुझे पता नहीं है आधी चीजें. तो इसीलिए 1:1 ज्यादा चाहिए था. एंड वो है कि वहाँ पे मेंटर की अवेलेबिलिटी भी लाइक सिंस देयर वो इट्स अ होल बैच ऑफ IIM alum. सो मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाता था वहाँ पे. एंड वही है कि लाइक
mock strategy was that कि you have to be very honest with your profile. आपने जो application form में जो भी लिखा है उसके साथ you have to be very thorough with it. And I am Lucknow and all के कभी कभी किसी किसी में वो होता है कि you need to know about your state politics a bit more, मतलब थोड़ा ज्यादा जानना है. Like तो वैसे टाइप का and you have to research the institute very well. So I think वही था. Like my profile, my the current affairs and the institute. So उसके ऊपर I was pretty much convinced कि ये इतना prepare करूँगा then हो जाएगा. So first was I am Lucknow and it was around 17 minutes या 18 minutes का interview. So उन्होंने मतलब काफी rapidly पूछा, almost entirely it was on politics of Odisha. So I was मतलब थोड़ा prepared था and I had good friends in EG की जो मुझे सब मतलब बता देते थे कि यहाँ से पढ़ ले वहाँ से पढ़ ले, तो वो थोड़ा help करता है when you have a buddy with you, buddy with you जो work कर रहा हो same goals के लिए. यही था. I think mock interviews का strategy is that like after you take your mock interview, some interviews are grilling and some interviews तुम्हें लगेगा कि हवा की जैसे चला गया chill है, but कुछ मतलब ऐसा ही होंगे. But necessarily is that necessary thing was कि आप feedbacks पे start working on it. You try to you try to perfect your profile and actually be very honest with your profile. And वहाँ पे जाके कुछ fake सा निकला. फर्स्ट थिंग इट्स वेरी एम्बैरेसिंग टू बी वहां पे फेक होना. दूसरा वाला वो प्रोफेसर छोड़ेंगे नहीं. तो तो फिर आई थिंक वही था मेरा स्ट्रेटेजी. एंड इफ वी टॉक अबाउट ऑल द इंटरव्यूज, रिस्पेक्टिव इंटरव्यूज जो आपने दिए थे, एक ओवरव्यू हमें बताइए, बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो हमें देखेंगे दे वुड बी वेरी इंटरेस्टेड कि लखनऊ का इंटरव्यू कैसा था, अहमदाबाद, कैलकटा, एंड व्हाट वाज द डिफरेंस. श्योर. सो लखनऊ का इंटरव्यू जैसे मेंशन किया था, इट वाज मोर ऑन द पॉलिटिक्स साइड. वो स्टार्टिंग में यू डू राइट योर रिटन असेसमेंट थिंग एंड देन इंटरव्यू इज यूजुअली 17 to 18 मिनट्स. कभी कभी किसी का कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है. एंड दे फोकस मोर ऑन योर पॉलिटिक्स साइड. सो लाइक आप अपने स्टेट के बारे में थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा ट्राई टू पुट सम मोर एफर्ट इनटू knowing your state's politics and क्यों हो रहा है, the reason behind that policy. Some policies like आपके state की खास बात क्या है, what are the imports and exports of it, and what are the controversies surrounding around your state, and why what also try to form an opinion based answer कि जब वो पूछें कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं. Try to be starting with a diplomatic definitely होना, but try to give an answer that actually comes to the point कि जो question पे था. आप घुमाओ जाओगे तो फिर वो सर भी घुमा देंगे, आपको आउट कर देंगे. तो डेफिनेटली वो मत करना. एंड आई थिंक कैलकाटा वाज मोर ऑन मेरे वर्क एक्सपीरियंस के साइड कि ये जो 26 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है तुमने क्या क्या किया है. एंड उसके बेस पे दे यूज्ड टू गिव मी सम सिचुएशंस कि अगर मुझे ये करना हो तो तुम लाइक व्हाट वुड यू डू एज अ मैनेजर और समथिंग, लाइक आप अपने मैनेजरियल डिसीजंस कैसे ले रहे हो एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ इट. सो कमिंग टू द डिसीजन, आप वो दैट आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि आपके डिसीजन में भी उतने एक्यूरेट नहीं हो, बट व्हाट दे वांट टू से इज कि आपके थॉट प्रोसेस क्या थे व्हाइल कमिंग एट दैट आंसर. सो एक बार अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को क्लियरली बता सको वो इंटरव्यूअर्स को, देन वो आई थिंक दैट विल कवर दैट पॉइंट. एंड कैलकाटा वाज मच मोर लाइक एंड में दे डिड आस्क अबाउट अ सर्टेन डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज एंड लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी एंड एफिकेसी एंड लाइक ऐसे टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे. And Ahmedabad was comprehensive, very comprehensive. They asked me everything from the meaning of my name to आया क्यों है यहाँ पे and तुझे क्यों ले. तो like they asked me everything कि तूने जो ये किया है वो क्यों किया है. And they were going into the L3 L4, मतलब उसके ऊपर cross question build-ups होते थे. So while even writing my transcript की I lost track कि उन्होंने क्या क्या पूछा था, क्योंकि बहुत ज्यादा वो पूछते हैं एंड सब कुछ कवर कर लेते हैं. सो आई वुड रेकमेंड कि मतलब अपने सब्जेक्ट्स को थोड़ा वो फोकस रखना एंड डेफिनेटली बी अक्वेंटेड विद योर वर्क एक्सपीरियंस कि एटलीस्ट यू कन्विंस देम. इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कन्विंसिंग द इंटरव्यूअर्स कि आपने ये किया है, आपने जो किया है वो ये सही किया है. एंड मतलब लाइक
मतलब इट्स वैलिड, एंटायरली वैलिड, एंड थोड़ा अच्छा काम किया. I think XLRI be entirely it was on work experience. What were the values and learnings you were learning from, you were getting from the work experience, and what were the challenges you faced while coming to this trading firm? Since I am from electrical engineering, so like तूने shift क्यों किया अपना domain? ऐसा क्या हो गया था? क्या तुझे मजा नहीं आ रहा था या anything like that? So be well prepared कि if you have a switch, then why is there a switch? And just it should be very convincing enough. So I think that was an overview. And yeah, SIBM Pune, like it was much more chill interview कि when they asked me कि कितने calls है, तो जब मैं सुनाने लग गया था तो वो हंसने लग गए थे. तो बहुत ज्यादा चिल था वो, मतलब बस रिसेशन क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, लाइक करंट अफेयर्स थोड़ा स्पेसिफिक था कि ये सब क्यों हो रहा है, तूने कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा यूज की है, एंड लाइक सबसे लॉस होने पे क्या करता है, प्रॉफिट होने पे क्या करता है. तो लाइक आई हैड दोस आंसर्स प्रिपेयर्ड एज वेल, क्योंकि लाइक वर्क एक्सपीरियंस इज समथिंग जो क्लोजली आप करते रहते हो. तो एंड अगर हम आपके बैंगलोर और एक्सेलराई इंटरव्यू की बात करें तो वो कैसे थे? So Bangalore was again fully on your SOP based. आपने जो SOP लिखा है उसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, एंड इन दैट उन्होंने पूछा कि तू फाइनेंस साइड क्यों आएगा, एंड मतलब उसी के बेस पे उन्होंने बहुत पूछा कि तूने फर्स्ट कंपनी में क्या क्या किया, एंड फिर स्विच करके सेकंड कंपनी में तो कैसे अपने आप को, मतलब हाउ डू यू वैल्यू योरसेल्फ इन दोस इन बोथ दोस कंपनीज, and were you decent enough, or like is your I mean are you still searching for answers, and what they were actually looking for कि तुम अपने मैनेजमेंट को मतलब तुम क्यों मैनेजमेंट करना चाहते हो, लाइक आर यू वेल सुटेड फॉर IIM बैंगलोर. तो ये था उनका पूरा, लाइक आई थिंक आई वाज मेजरली आस्क्ड ऑन entirely on my SOP, and definitely there were 2-3 questions on my hobbies and this extra मतलब ये current affairs के ऊपर कि लाइक उस समय जस्ट बजट निकला था तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस थे. एंड XLRI का डेफिनेटली वो तीन पैनलिस्ट है, एंड वो भी काफी चिल इंटरव्यू था, लाइक 30 मिनट्स का. वो दे बेसिकली आस्क्ड अबाउट वर्क एक्सपीरियंस अगेन कि क्या वैल्यूज लिए हो, क्या लर्निंग्स लिए हो, क्या चैलेंजेस है, एंड अगर तुम इस सिचुएशन में होते तो तुम क्या करते. एंड यही कि व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स, दे गेव मी अ केस सिचुएशन जहाँ पे यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स and what are the challenges those each stakeholder is facing, and to come up with a and I think वैसे to come up with a solution, अगर ये हो गया तो क्या करोगे या वैसा टाइप. So I think XLRI was more of a situational interview जहाँ पे आप if you were in this situation what would you do. So they were actually checking the ethics and values associated with this candidate, and IIM Bangalore was SOP based कि आप well suited हो कि नहीं. So I think both interviews में यही था. एंड इफ आई आस्क यू वन थिंग, जो आप अपने एस्पिरेंट्स को, जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे हु हैव दिस विजन कि हमें IIM जाना है? दे विल सी योर वीडियो एंड दे वुड वांट टू नो कि क्या बात है. या लाइक स्टार्टिंग में अगर मन बना लिया है तो फिर डेफिनेटली कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है समझने में कि करना क्या है, बट अगर पहले से मन बना लिया है तो फिर जस्ट गो विद द एंटायर फ्लो अपने प्रिपरेशन के साथ. एटलीस्ट कोई मतलब वैसा ना हो कि तुम्हें रिग्रेट हो कि यार प्रिपरेशन में ये कर देता तो हो जाता, बट वैसा ना हो. लाइक आई वाज एंटायरली हैप्पी विद माय प्रिपरेशन फेज, इनफैक्ट वो तो बेस्ट टाइम था. एंड लाइक try to be very try to be very diligent towards your studies if you have a goal, and also मतलब ओवरवेलम मत करना, लाइक डू टेक रेगुलर ब्रेक्स. गोवा चले जाना है तो फिर चले जाना, बट ऐसा नहीं हो कि एग्जाम के 2 दिन पहले जाना, बट डेफिनेटली एक अच्छे टाइम पे जाना. तो वही मतलब डू टेक रेगुलर ब्रेक्स. अपने अपने आप को ज्यादा ओवर क्रिटिसाइज मत करो कि एक मॉक स्कोर खराब हो गया तो दैट्स द एंड. लाइक बहुत मॉक्स खराब होते हैं, बहुत स्टार्टिंग में खत्म हो जाती है दुनिया, 2-3 बार तो यूं ही खत्म हो जाती है, बट डेफिनेटली ट्राई टू पिक योरसेल्फ अप एंड जस्ट गो विथ योर स्टडीज. एंड अगेन डी डे के दिन कुछ भी हो सकता है, सो ओवरली कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, अपने आप को काफी न्यूट्रल रखना है, एंड वैसे ही प्रिपेयर करना है जैसे कोई भी एग्जाम हो. लाइक आई थिंक आई पुट द सेम एफर्ट्स इन माई ईच मैनेजमेंट एग्जाम, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि कैट है तो बहुत हार्ड है तो बहुत ज्यादा एफर्ट डालना ही है. लाइक एवरी एग्जाम इज अ मतलब अगर वो क्रैक करना है तो फिर सेम एफर्ट्स डालो, एंड डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा. तो आई थिंक दैट वाज द प्रिपरेशन फेज. एंड मॉक इंटरव्यूज में मतलब अपनी प्रोफाइल को एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल पोर्ट्रे करो, ट्राई टू शो योर बेस्ट पॉसिबल नेचर.
एंड मतलब डेफिनेट कभी कभी कुछ होता है कि एकेडमिक्स का वो होता है कि 12th में खराब आ गए या 10th में खराब आ गए, तो ये नहीं कॉलेज है। बहुत कॉलेज है तो जो 10th 12th देखें भी ना, तो एक बार मतलब वो मत सोच के छोड़ देना कि यार 10th 12th खराब है या यूजी अच्छा नहीं है, या तो मतलब प्रोफाइल उतनी वीक नहीं है। लाइक बहुत अच्छे, बहुत वीक प्रोफाइल वाले भी इस बार बहुत अच्छा कन्वर्ट किए हैं, एंड आई थिंक मतलब उतना अपने आप को कोसो मत। राइट। एंड अल्टीमेटली इफ आई आस्क यू अबाउट ईजी, आपका एक्सपीरियंस? आई मीन वो तो फैमिली टाइप ही हो गया है, लाइक हर दिन मैं जाता हूँ, अपनी थोड़ी बेइज्जती करा के आ जाता हूँ, बट वो है कि लाइक मतलब जब मेरे दोस्त या रूममेट ने बोला था कि तू एक बार कौन की फैकल्टी सुनेगा तो छोड़ेगा नहीं। एंड सेकेंड क्लास में सर ने एक बहुत अच्छा जोक मारा था, तो आई थिंक वो लाइफ में एक जीतू भैया टाइप का चाहिए होता है जिससे आप कुछ सक्सीड कर दो। तो आई थिंक Yes. मेरे जीतू भैया वही थे, ईजी थे। एंड आई Yes. थिंक सारे सारे फैकल्टीज, आई थिंक आई मीन आई लव ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। शाहजा सर को तो लाइक आई थिंक थोड़ा पर्सनल सा कनेक्शन टाइप लगता है उनके साथ, बट हनी सर एंड गौरव सर मतलब डेफिनेटली काफी काफी हेल्पफुल है। लाइक आप 3 बजे या 4 बजे में टेक्स्ट करता था क्योंकि उस समय मॉक्स दे के खत्म हुआ, एंड कुछ डाउट आ गया, रहा नहीं जा रहा, सुबह तक भूल जाऊंगा, तो उसी समय टेक्स्ट कर देता था। एंड वो भी 1 घंटे बाद टेक्स्ट कर देते थे या फिर कल सुबह टेक्स्ट करते थे, बट आता था। लाइक यू वोंट बी लीविंग, लाइक कुछ टीचर्स होते हैं जो पीपीटी से पढ़ा देते हैं, वी नो दैट काइंड ऑफ, कि मतलब ऐसे ये लोग पढ़ा दिया अब हो गया। बट ईजी एक्चुअली स्टेज विद यू इन दिस एंटायर प्रिपरेशन, मोटिवेशन एंड वो सब होते रहता है, हंसी मजाक भी होते रहता है। आप काफी एंजॉय करोगे अपने प्रिपरेशन फेज में, तो वो बर्डन सा नहीं लगता है कि मतलब कैट नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इनकेस नहीं भी हुआ ना, तो दे ऑल्सो ट्राई टू कन्विंस यू कि तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं। तो लाइक यू वोंट बी लेफ्ट हैंगिंग, मतलब ऐसे तुम मतलब छोड़ के नहीं चले जाते, तो दे ऑलवेज स्टे विद यू। तो वही है मेरा ईजी का एक्सपीरियंस। Along with being teachers, आपको mentorship भी वहाँ मिलती है, तो you need not worry कि अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो रहा है तो अपने आप ही figure out करना है. They will be in it with you as any other person, as a mentor, as a supporter. या आई मीन लाइक वर्किंग प्रोफेशनल्स को बहुत सपोर्ट मिल जाता है कि सर ये काम है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, इतना बैकलॉग हो गया, तो दे एक्चुअली कस्टमाइज कर देते हैं कभी कभी शेड्यूल आपके लिए। आई डोंट नो इफ मतलब मैंने बाकी कोचिंग्स का उतना देखा नहीं है और देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि लाइक आई वाज प्रीटी मच कन्विंस्ड कि ये अगर यहाँ पॉसिबल है एंड दिस इज द बेस्ट वे पॉसिबल, तो फिर क्यों नहीं ट्राई करूंगा इनको। एंड देन अगेन जो भी फ्रेशर्स हैं उनको भी डाउट होता है कि सर वर्क एक्स के पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो फिर क्या करें, तो फिर उनके लिए भी सोल्यूशन होता है। एंड अल्टीमेटली एवरी सोल्यूशन इज कि आपको बस पढ़ना है, बाकी इजी देख लेगा, तो दैट बर्डन इज शेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट एज वेल एज द स्टूडेंट्स, तो इसलिए हल्का सा लगता है। Very well said. Thank you so much for sharing your journey and your experience with us. I'm sure बहुत लोगों को help होगी आपकी ये journey और experience से. And we wish you all the very best. Thank you so much for joining us. थैंक यू मोनिका। Yeah, thanks. Have a good day.